RK method, of fourth order to find the solution of the differential equation. dy by dx is equal to x square plus y square at x is equal to 1.2 in the steps of 0.1. तो आपको h कितना लेना है? 0.1. What is x naught? X naught is 1 and y naught is 1.5. So आपको स्टेप लेना है 1.1 का, तो एक बार दो बार आप करोगे. सो स्टेप 1 में आपको x1 कितना होगा? x नॉट प्लस h, तो 1.2 पे वैल्यू मिल जाएगी. स्टेप 2 पे आपको x2, सो x2 कितना हो जाएगा? सॉरी, स्टेप 1 में आपको वैल्यू मिलेगी 1.1 पे, सो 1 प्लस 0.1, सो दैट इज 1.1 एंड स्टेप 2 में आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.2. बेटा इज इट क्लियर? गर्ल्स क्लियर है सबको? So let us now see the next method. So the next method is multi-step method or predictor corrector method. See, जब हमें याद हो, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, there are two types of methods, single step method and multi-step method. So अभी तक जो हमने मेथड करे हैं, अभी तक हमने we have done Picard's method, we have done Euler's method, we have done Taylor series method, RK method. So value of yn plus 1 depends upon yn. So now the next method is multi-step method, right? Or it is also known as predictor corrector method, right? Or it is also known as Miller's method, right? So here the value of any yn plus 1 will depend upon yn minus 1, yn minus 2, yn minus 3. So it will depend upon 4 variables, right? 4 initial values. So in general अगर मैं बात करूं, so अगर आप देखो, पहले सिर्फ आपको y0 चाहिए होता था, अब y1 भी चाहिए होगा, y2 भी चाहिए होगा और y3 भी चाहिए होगा. So basically y4 की वैल्यू डिपेंड करेगी y3, y2, y1 और y0 पे. सिमिलरली y5 की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? लास्ट 4 वैल्यूज y4, y3, y2, y1 पे. सिमिलरली y6 किस पे डिपेंड करेगा? y5, y4, y3, y2 and so on. Right? So this method is multi-step method. Beta, is it clear? So आज I'll just show you that, otherwise इस पे क्वेश्चन ही आता है, right? But let me just show you in brief how we get this method, right? Let us just study the derivation of this method. I'll do it from here only. So say we have to solve this. We have to solve this differential equation dy by dx is y. And we have initial condition y of x naught is equal to y naught. और इसके अलावा जो हमें वैल्यू है, that I know at 4 points. That I know at 4 points. And these 4 points are, say I know the value at xn minus 1, xn minus 2, xn minus 3. Obviously xn minus 3 is nothing but what my x naught, initial value. So I know the value at 4 points. So what I'll do, I have to calculate the value at xn plus 1. xn plus 1 पे मुझे वैल्यू चाहिए. हमने क्या किया, जैसे हमने पिकार्ड्स मेथड में किया था, हमने इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम द लिमिट yn minus 3 to yn plus 1. dx को इधर ले गए, तो ये क्या बना? dy is equal to f of xy dx. So dy is equal to f of xy dx. So हमने इंटीग्रेट कर दिया n minus 3 से लेके n plus 1 तक. तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड इज द इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ x की लिमिट आ गई और राइट हैंड साइड पे हमारे पास y की लिमिट आ गई. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, अपर लिमिट पुट करेंगे तो yn प्लस 1, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो yn माइनस 3. yn माइनस 3 को हमने इधर भेज दिया एंड दिस इंटीग्रल एज सच. बेटा यहाँ तक क्लियर है?
बेटा क्लियर है गर्ल्स? इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right, so now what we have 4 points: xn minus 3, yn minus 3, xn minus 2, yn minus 2, xn minus 1, yn minus 1 and xn yn. हमने क्या किया, इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से इस फंक्शन पॉलिनोमियल को f of xy को हम इंटरपोलेट कर देंगे. हमें पता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है. If you see, the starting point is what? xn minus 3. So starting point is xn minus 3 and the starting value is yn minus 3. So you see, this is nothing but x naught, this is nothing but y naught. So हमें पता है न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, f of xy is equal to, right? अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स में लिख रहे हैं, f of xy में लिख रहे हो. सिंगल वेरिएबल हमारे पास था y is equal to f of x, तो हम क्या लिखते थे, f of x is equal to y naught plus p delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial delta square y naught and so on. तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास f of xy है, तो अब f of xy क्या हो जाएगा, y naught is the value of the function at x naught. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, xn minus 3, yn minus 3. So you see, f of xy is what, f of n minus 3. So here f of n minus 3 is what, f of n minus 3 is nothing but the value of the function at the starting point. So n minus 3. So सिर्फ उसको इतनी बड़ी ब्रैकेट बार बार लिखने की बजाय हमने f of n minus 3 लिख दी. So that means the value of the function at the n minus 3 ordinates. So f of n minus 3 plus p delta f of n minus 3 plus p into p minus 1 by 2 factorial delta square f of n minus 3. अब since 4 points हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आएगा वो कितने ऑर्डर तक आएगा, थर्ड ऑर्डर तक आएगा. इसलिए हमने इस इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर तक टर्म्स लिखी हैं. So p into p minus 1, p minus 2 over 3 factorial delta cube of f of n minus 3. और हमें पता है where p is what, p is x minus x naught by h. तो यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, xn minus 3 by h. बेटा यहाँ तक क्लियर है बच्चे? इज इट फाइन? Yes, ma'am. अब हमने क्या किया, ये जो f of xy की वैल्यू है ये हमने ऊपर इंटीग्रल में पुट कर दी, राइट? सो यू सी व्हाट यू गेट, yn plus 1 is equal to yn minus 3 प्लस इंटीग्रल कहाँ से कहाँ है, xn minus 3 to xn plus 1, ये आपकी f of xy की वैल्यू डाल दी. बट अगर आप देखो ये जो पॉलिनोमियल है दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ p, बट हमारी इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x. सो वी विल फर्स्ट चेंज दिस. तो हमें पता है p क्या होता है, p इज x minus x naught by h. तो x naught की जगह क्या है, xn minus 3. तो हमें पता है यहाँ से अगर मैं dp निकालूंगी, सो dp विल बी व्हाट, dx, नीचे h है, और जब आप xn minus 3, दिस इज कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 0 है, दिस विल कैंसिल. सो व्हाट इज dp, सो dp इज इक्वल टू dx by h. तो यहाँ से dx कितना आ गया, dx is h into dp. So dx is h into dp. अब लिमिट्स अगर आप देखो, आपकी स्टार्टिंग लिमिट क्या है, xn minus 3. तो जब आप p की वैल्यू में xn minus 3 पुट करोगे, so what will happen, xn minus 3 minus xn minus 3. So you see this will become 0. So p is 0. और जब आप xn plus 1 पुट करोगे, तो अगर आप देखो बेटा, आपके पास xn minus 3 था, फिर xn minus 2 था, फिर xn minus 1 था, फिर xn था, फिर xn plus 1 था. तो इन दोनों में डिफरेंस h, इन दोनों में डिफरेंस h, इन दोनों में डिफरेंस h, इन दोनों में डिफरेंस h. तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, xn plus 1 माइनस xn minus 3, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 4h. So you see what will happen, जैसे आपने x की जगह xn plus 1 डाला, तो xn plus 1 minus xn minus 3. So you see this is 4h, एक h नीचे है तो h will cancel, so p is 4. So what will happen, so yn plus 1 is equal to yn minus 3 plus h into this whole dp, right? और हमारे पास क्या आ गया, we have limits are 0 to 4. ये h क्यों आया, बिकॉज dx की वैल्यू कितनी थी, dp into h, तो ये h वो वाला h है.
So that's it. We have a polynomial in P. Integration with respect to P है. So we will just integrate this. So this is just simple integration. जब आप upper limit put करोगे, lower limit is 0, so everything will become 0. Upper limit put करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा. बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? So now we are about to get the final formula. बेटा is it clear? बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? So हमारे पास अभी yn plus 1 की वैल्यू आ गई है. So yn plus 1, if you see, just I'll go back. So yn plus 1 is what? Yn minus 3 plus h into 4 fn minus 3 plus 8 into delta fn minus 3. So अगर आप देखो यहाँ पे डेल्टा आ रहा है, तो what we will do, we will change delta into simple function. हमें पता है डेल्टा ऑपरेटर क्या होता है, वन स्टेप फॉरवर्ड. तो जब आप n minus 3 plus 1 करोगे तो n minus 2 आ जाएगा. So f of n minus 2 minus f of n minus 3. ऐसे ही जब आप डेल्टा स्क्वायर ऑफ एफ एन माइनस 3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा साथ में रहेगा, वन स्टेप फॉरवर्ड, सो एफ एन माइनस 3 माइनस वन स्टेप फॉरवर्ड तो n माइनस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, एफ एन माइनस 3. अगेन दिस इज व्हाट, वन स्टेप फॉरवर्ड इज n माइनस 1 माइनस एफ एन माइनस 2, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस fn minus 2 minus fn minus 3. So this will become fn minus 1 minus 2 into fn minus 2 plus fn minus 3. So you see, हमने ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दी. ये देखो, so fn minus 2 minus fn minus 3, ये डेल्टा fn minus 3 की वैल्यू है, ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है. ऐसे ही हमने डेल्टा क्यूब की वैल्यू डाल दी. तो अल्टीमेटली जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सो यू गेट दिस फॉर्मूला. सो व्हाट वी गेट, yn plus 1 is equal to yn minus 3 plus 4h by 3 twice of fn minus 2 minus fn minus 1 plus 2 into fn. So here if you see, what is fn minus 2? Fn minus 2 is nothing but the value of the function at n minus 2. Fn minus 1 is the value of the function at xn minus 1 and yn minus 1. And fn is the value of the function at x and y. Beta, is it clear? Is it clear? So this formula you have to remember. This last formula जहां पे मैंने डबल स्टार लिखा है, और this equation number 5, this you have to remember. Beta, is it fine? Beta, is it fine? Yes, ma'am. अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. अभी यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई है. अगर आपको याद हो, मैंने जब ये शुरू किया था, so हमने मेथड का नाम किया था प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड. तो ये मेथड थोड़ा सा और बेटर किया गया है. What has been done in this method is, right, पहले तो अगर आप just for 1 minute, right, I'm going off track, right, I'm stopping here. अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, अभी आपने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा, वहां पे आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यू हैव डन सो मेनी मेथड्स, राइट, एग्जैक्ट मेथड, होमोजीनियस मेथड. तो यहाँ पे मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. यू सी व्हाट इज हैपनिंग, सीधा मुझे पता है मेरी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है. व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई आरके मेथड. मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सीधा आरके मेथड लगा दूंगी. एंड आरके मेथड इज एप्लीकेबल टू ऑल द इक्वेशंस, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है, चाहे लॉगरिथमिक फंक्शंस में है, चाहे एक्स में है, चाहे एक्स स्क्वायर में है. सो व्हाट विल हैपन, आई विल जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ द y एट x. आप x को चेंज करो, y आपको मिल जाएगा. सो यू कीप ऑन चेंजिंग x, you will keep on getting y. So you will keep on getting the curve y is equal to f of x. So basically you will keep on getting the solution of this system, right? So this is what we are doing. We are not bothered about कि method क्या है, हम सीधा अपना एक numerical method लगा रहे हैं. That too, if you see recursion wise, easy formulas are becoming. हम इसको coding से apply करते हैं, हमें directly results मिल जाते हैं. तो खासकर जब IT companies में या non mathematicians ने equations, differential equations को solve करना होता है, they directly apply these methods.
And once I have shown you also, there is a software called MATLAB. So MATLAB में all these are already coded. Like अगर आपको RK method लगाना है, तो the command is DDE. So DDE means it will automatically apply RK method. So you have any first order differential equation, चाहे वो homogeneous है, चाहे उस पे variable separable लगता है, चाहे उस पे exact equation लगती है, you can apply any of these methods and get the solution. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. This is the advantage of this whole course. So now what we have done, so we have predicted the value of yn plus 1. So that is the reason, if you see, इसने formula में क्या किया है, ऊपर p लगा दिया है. So if you see equation number 5, so this is the first formula which you have to learn. So this is the formula for predicted value of y. अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और हमें yn plus 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल गई है. सो पहले हम ये फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल्स में, हमें yn plus 1 की एक वैल्यू मिल जाएगी. फिर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को करेक्ट करेंगे. When I'm saying correct means ये नहीं है कि ये वैल्यू करेक्ट नहीं है, हम इसको और बेटर कर देंगे. So that is the reason we will have another formula. So that formula is the corrector formula. So that is the reason जब हमने मेथड शुरू किया था, मेथड का नाम क्या था, प्रेडिक्टर करेक्टर. So पहले हम प्रेडिक्ट करेंगे. प्रेडिक्ट हमने इस इक्वेशन नंबर 5 से करी, तो इक्वेशन नंबर 5 आपको याद रखनी है. एंड नाउ वी विल करेक्ट इट. तो अभी हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए थी yn plus 1 की. हमने इंटीग्रेट किया था इसको yn plus 1 से लेके xn minus 3 तक. अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे yn plus 1 से लेके yn minus 1 तक. पहले हमने n minus 3 तक किया था, अब हम n minus 1 तक करेंगे. तो सिर्फ 3 पॉइंट्स. So yn plus 1, yn and yn minus 1. पहले हमने we had 2 more points, right? So we had 2 more points, just once, right? So now सेम टेक्निक. सो यू सी हमने क्या किया, पिकार्ड्स मेथड किया, इसको इंटीग्रेट किया, ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया. अगेन f of x y इज देयर. हमने इसको न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन से इंटरपोलेट किया. सो सिंस 3 पॉइंट्स थे, तो हमारे पास एक बार डेल्टा आएगा और दूसरी बार डेल्टा स्क्वायर आएगा. अप टू सेकेंड ऑर्डर तक हमें मिल जाएगा. सो यू सी ये मिला, हमने इसकी वैल्यू डाल दी इंटीग्रेशन में. सेम स्टेप्स. फिर हमने इस सारा इंटीग्रल p में चेंज कर दिया, मूवमेंट हमने p में चेंज कर दिया, हमें लिमिट्स मिल गई 0 to 2. सो अगेन जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया, हमें ये फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा आ गया, डेल्टा स्क्वायर आ गया. फिर हम क्या करेंगे, फिर से डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर को एलिमिनेट कर देंगे. So finally, जब हम eliminate कर देंगे, we have put these values. So finally, we get Vn plus 1. So you see, this is the corrector formula. So Yn plus 1c. So c here, if you see, is for the corrector. This will be what? Yn minus 1 plus h by p f of n minus 1 plus 4 times f of n plus. अब यहाँ पे क्या आएगा, f of n plus 1 आएगा. So वो n plus 1 कौन सा है? That n plus 1 will be from the predictor one. So basically अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, f of n plus 1 p की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? We will find its value at xn plus 1 and yn plus 1. ये yn plus 1 हम कौन सा यूज करेंगे? वो वैल्यू जो हमें प्रिडिक्टर में दी थी. तो एक तरह से ये गॉस सीडल की तरह काम कर रहे हैं, हम न्यू वैल्यू को यूज कर रहे हैं. तो अब यहाँ पे हमने fn plus 1 को भी ले आए हम फॉर्मूले में, और ये वैल्यू हमने कहाँ से यूज की, ये हमने प्रेडिक्टर फॉर्मूला से करेक्ट करी. बेटा, इज इट फाइन? सो दिस मेथड, सो इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 8 यू हैव टू रिमेंबर. सो टुगेदर दीज टू इक्वेशंस मेक द मिले मेथड. सो फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर द प्रेडिक्टर फॉर्मूला एंड सेकंड इक्वेशन इज फॉर द what you call it as corrector formula. Beta, is it fine? Any doubt in the formula? Beta, is it clear to all? Beta, is it fine?
क्लियर है सबको? Yes, ma'am. राइट, सो ओके, सो जस्ट लेट मी टेक वन स्मॉल क्वेश्चन. हाँ बेटा क्लियर है, कोई डाउट बेटा? So now let us take one small question on this one. Apply Millay's method. So when I'm saying Millay's method, so Millay method क्या हुआ? Predictor and the corrector method. To find the solution of the differential equation, so dy by dx is equal to, so हमें पता है जो dy by dx के साथ होता है that is your function, so x square into 1 plus y at x is equal to 1.4. तो हमें x is equal to 1.4 पे वैल्यू निकालनी है. गिवन, अब देखो हमें 4 वैल्यूज गिवन होंगी इस मेथड में. So the starting value, so x naught is 1 and y naught is 1. At 1 1 the value, at 1 the value is 1. Then x1 कितना है? 1.1. y1 कितना है? 1.233. Then x2 कितना है? 1.2 और y2 कितना है? 1.548. Then x3 कितना है? 1.3. y3 कितना है? 1.979. बेटा इज इट क्लियर? तो अब हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं. तो बेटा सबसे पहले हमने लगाना है प्रिडिक्टर मेथड. सो बाय प्रिडिक्टर मेथड, सो प्रिडिक्टर मेथड जस्ट लेट मी राइट हियर. हमें पता है yn plus 1 क्या था? yn plus 1 was yn minus 3 plus 4h by 3 into this thing that this is here. So this will be how much? कितना था यहाँ पे? 2 के साथ कितना आएगा? What you will get with 2? So 2 into fn minus 2 minus 2 into not 2. So let me just write it here. So minus fn minus 1 plus 2 into fn. So yn minus 3 plus 4h by 3 into 2 into fn minus 2 minus fn minus 1 plus 2 into fn. बेटा देखो चॉइस आपकी है, आपने ऐसे लर्न, दिस इज द रीजन मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है. आपने ऐसे लर्न करना है, आप ऐसे लर्न कर लो. अदरवाइज हाउ यू कैन लर्न इज, जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है हम उसको x0 नाम देते हैं, x1 नाम देते हैं, x2 नाम देते हैं, x3 नाम देते हैं. सो व्हाट विल हैपन? सो अब नेक्स्ट वैल्यू हमने निकालनी है. सो y4, so y4 will be what? y0 plus 4h by 3. आपने कैसे जाना है? 1 2 3 जाना है. सो f1 f2 f3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस साइन, बीच में माइनस साइन, बाकी दोनों प्लस. बेटा इज इट फाइन? बेटा क्लियर है? गर्ल्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है. तो स्टार्टिंग में x0 x1 x2 x3, तो y0 y1 y2 y3. so what is y4? what is y4? y4 is y0 plus 4h by 3 f1 f2 f3, f2 के साथ माइनस साइन और आगे पीछे 2. So that's it. So we just have to now put all these values. y0 की वैल्यू हमें पता है. अगर आप डाटा को स्टडी करो, x0 1 से शुरू हो रहा है, 1 से 1.1 1.2 1.3. तो एक चीज क्लियर है कि h कितना है यहाँ पे? h is 0.1, डिफरेंस इज 0.1. so h की वैल्यू आपको पता है. now what is f1? f1 is the value of the function at x1 y1, value of the function at x1 y1. so you see what is x1? x1 is 1.1. what is y1? 1.233. so you see f1 फंक्शन क्या है हमारा? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y. सो x1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस y1. ये वैल्यू डाली, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई. ऐसे ही हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f2. ऐसे ही हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f3. सो मूवमेंट मेरे पास पॉइंट्स तो है ही है. सो हमने जस्ट ये पॉइंट्स को पुट किया, वैल्यू निकल गई. बेटा यहाँ तक क्लियर है?
Yes, ma'am. Just we put all these values in this formula. So हमने ये सारी values formula में डाली. So what we get? We get y4 predicted is what? 2.5738. So this is the y4 predicted. तो आप एक स्टेप आगे चले गए. अब 1.1 था, 1.1 था, 1.2 था, 1.3 था. तो अब आपको ये वैल्यू किस पे मिल गई है? ये 1.4 पे आपको वैल्यू मिली है, प्रेडिक्टेड वैल्यू. सो आपको 1.4 पे ही वैल्यू निकालनी थी, तो हम एक बार ही मेथड रिपीट करेंगे. बट अभी ये प्रेडिक्टेड वैल्यू निकली है, अब हम निकालेंगे करेक्टेड वैल्यू. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर द करेक्टर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करेक्टर? सो अगेन y4 करेक्टर is equal to what? So y4, अब हम y3, y2 और y1 यूज करेंगे. So you see, so we will have what? y2 plus h by 3 f2 plus 4 times f3, right? Plus f4. So this f4 is one, the f4 which we got from the predicted value. So y2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, f2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, f3 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो. बट व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x4 एंड y4 प्रेडिक्टेड. तो x4 पे वैल्यू कितनी थी फंक्शन की? दिस वाज 1.2 नहीं 1.4. 1.4 पे हम निकाल रहे थे. और ये वैल्यू हमने कितनी निकाली थी अभी? दिस वैल्यू वाज, जो आपने प्रेडिक्टेड वाली वैल्यू अभी निकाली थी, वो कितनी आई थी? 2.5738. So 2.5738. So what this value will be? हमारा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y. So जो भी ये वैल्यू आएगी, so if you see, ये पहले ये वैल्यू निकाल रहा है, इसने ये देखो ऑलरेडी यहाँ पे निकाल दी है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मूले में यूज होनी है. So x4 square into 1 plus y4p. So this value is 7.0046. So moment हमारे पास सारी values आ गई हैं. What we will do? We will just put this value in the formula. So this is y2, h by 3. This is f2, 4 times f3 plus f4 predicted. So आपने solve किया, आंसर कितना आया? 2.5750. So this is the value by the Millais method. बेटा, is it clear? बेटा, is it clear? गर्ल्स क्लियर है सबको?